हरि हरि मुकुंद मुरारी रमती नामय जीवम श्री राम रामनम श्रीमधुसूदनम श्री राम रामनम श्रीमधुसूदनम भजरंदन श्यामा अंदन হরে কৃষ্ণ বন্ধুরা, শুভ সকাল। সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমরাও ভালো আছি। আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। এখন পুজো হয়ে গেছে, সকালের আরতিটা দর্শন করেছি একটু। এখন হচ্ছে ভোগ রান্না হবে। আর আমাদের আজকে ঘরে বৃন্দাবন থেকে কারা আসবে আর যখন আসবে সব কিছু দেখাবো। আর তাদের জন্য আয়োজন করতে হবে কিছু, বেশি কিছু না, মানে কিছু তো করতে হবে। তো সেই জন্য এই যে এখন ভোগ রান্না করতে যাবো, তাড়াতাড়ি একটু যেতে হবে। আর পায়েস আরে বানাতে তো হবে, একটু দেরি হয়। সেই জন্য হচ্ছে আর অনেক দিন পরে তারা আসবে আর তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো সব কিছু। তো ভিডিওটা দেখতে থাকুন, আশা করছি ভালো লাগবে। আজকে আমি গোপীনাথের সিঙ্গার একটু দর্শন করে দিই। আজকে আমাদের গোপীনাথের সিঙ্গার কিরকম হয়েছে, এই যে এই ড্রেসটা আবার পরানো হয়েছে। এটা একবার পরানো হয়েছিল বৃন্দাবন থেকে যারা আসবে তো বৃন্দাবনেরই ড্রেসটা পরানো হলো। তো এই যে এই ড্রেসটা আর সিঙ্গার এরকম হয়েছে, গাছের গোলাপ খুব সুন্দর লাগছে। হরে কৃষ্ণ, রাধে রাধে, জয় গুরুদেব, জয় গোপীনাথ। আমি এখানে সবজি রান্না করতে বসে পড়েছি। আর সবকিছু অল্প অল্প হবে। আর যারা আসবে তারা একদম প্রসাদ অল্প অল্পই পায়। আর হচ্ছে যে রুটিটা বেশি, রুটি ছাঁচ এইসব তাদের পছন্দ। মিষ্টি মানে মিষ্টি বলতে পায়েস আর এইসব। তো আমি সেই হিসাবেই সবজি রান্না করছি। আমি এখানে সবজি রান্না করছি, এই যে বাঁধাকপি অল্প সব, আর বেগুন ভাজা হবে। এই যে বেগুনি কালকে হয়েছিল, সেই জন্য অল্প বেগুন আছে, এগুলো ভাজা হয়ে যাবে। কুমড়া আছে, পকোড়া করব। আর বাঁধাকপির আলুটা রান্না করছি। আর মল্লিকা হচ্ছে যে এখনো যে পকোড়া মানে কড়ি পকোড়া হবে, তাদের তো কড়ি পকোড়াটা খুব ফেভারেট। তো সেই জন্য কড়ি পকোড়া হবে, পকোড়া এখনো সবজি রান্না করতে হবে। আর মেথি শাকটা আছে, একটু ভাজা হবে। আর হবে পায়েস বসে দিয়েছে মল্লিকা, আর আমি এইদিকে সবজিগুলো রান্না করছি। আমাদের রান্না বসে দিয়েছি, তাড়াতাড়ি করে করতে হচ্ছে, সেই জন্য কিছু শেয়ার করতে পারবো নি। আর আমি তাড়াতাড়ি করে এই যে 3টা গ্যাসেই বসিয়ে দিয়েছি। একটা পায়েস হচ্ছে, একটা এই যে ভাজা করে এটা বাঁধাকপি বসাবো, আর এটাই মেথি শাকটা ভাজা হচ্ছে, মেথি শাকটা করবো। তারপর কড়ি হবে, অন্যটা লাস্টে হবে। আর মল্লিকা এই যে পকোড়া বানাবে বলে কড়ির পকোড়া যাচ্ছে। আর কুমড়ার পকোড়া হবে এখনো। তো এইগুলো সব শুরু করে দিয়েছি। তো এইদিকে এই যে বাঁধাকপি সবজিটা হচ্ছে, আর খুব তাড়াতাড়ি করতে হচ্ছে। তোমাদের সঙ্গে কিছু শেয়ার করতে পারছি না, তোমরা মাফ করে দেবে আমাকে। আমার ইচ্ছে হয়তো কি সব কিছু শেয়ার করতে, কিন্তু কি করব, তাড়াতাড়ি সব করতে হচ্ছে। আর 12টার মধ্যে তারা সব চলে আসবে, সেই জন্য। আর তার আগে ভোগ নিবেদন করে দিতে হবে। আর এইদিকে কড়িটা বসিয়ে দিয়েছি, পকোড়া কড়ি হবে। আর পায়েসটা হতে দেরি হয়, সেই জন্য একদম ছোট গ্যাসটায় বসিয়েছি, আর ধীরে ধীরে হচ্ছে। মেথি শাকটা হয়ে গেছে, আর এইদিকে বাঁধাকপিটা হচ্ছে।
আমাদের এই যে সবার লাস্টে অন্নটা বসিয়েছি আর মল্লিকায় যে পকোড়াগুলো সেই কুমড়ার পকোড়াগুলো ভাজছে হয়ে গেলে তারপরে রুটিটা হবে, রুটিটা হয়ে গেলেই ভোগ নিবেদন করা হবে। এখন বাজে 11টা, খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে সব করছি আর তারা আর একটু পরেই চলে আসবে। তো বন্ধুরা এখন দুপুর এই যে ভোগ রান্না হয়ে গেছে, খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে রান্না করলাম, তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারিনি এটাই। আর যেটা যেটা মানে রান্না করেছি অনেকবার শেয়ার করেছি, সেই জন্য আরও আর তাড়াতাড়ি তো করতে হবে, আর শেয়ার করতে হলে অনেক টাইম লেগে যায়, তো সেই জন্য তাড়াতাড়ি করে রান্না করে ভোগ রান্না করে দিতে, ভোগ নিবেদন করে। তো এখনো আসেনি যারা আসার কথা, তো 12টার সময় আসার কথা, এখনো 12টা বাজেনি। তো এই ভোগ নিবেদন করেছে, তো তোমাদেরকে ভোগ দর্শন করে দেবো কি কি ভোগ রান্না হয়েছে। হরে কৃষ্ণ বন্ধুরা, রাধে রাধে। এই যে ভোগ দর্শন করে নিন, আজকে গোপীনাথের কি ভোগ নিবেদন করা হয়েছে, গোপীনাথকে ভোগ দর্শন করে নিন। অন্ন, রুটি আর বেগুন ভাজা, পকোড়া দেওয়া হয়েছে 2 রকম, তারপরে পকোড়া করি আর মেথি শাক, আর এখানে পায়েস হয়েছে, রসমালাই আর গোলাপজাম, স্যালাড, আর এটা বাঁধাকপি মটর কলাই দিয়ে সবজি, আর এটাই হয়েছে। আর ছাঁচ জল এখানে আছে, আর এইগুলোই রান্না করতে পেরেছি যতটা পেরেছি। আর এই যে আমাদের গোপীনাথ দর্শন করে নিন। এই যে আমাদের ঘরে এসেছে বৃন্দাবন থেকে বাবা, তো আমাদের অনেক দিনের পরিচিত আমরা, তো আমাদের এখানে প্রতি বছর আসে আর প্রসাদ পায়, আমি প্রসাদ বানিয়েছি তাদের জন্যই। কথা বলো। जय राधे राधे। राधे राधे। होवे, राधा रानी कृपा करो। बाबा कुछ बोलो। आपको कथा सुनाया, उधर डांस भी दिखाया, दिखाया। हाँ। हाँ, वो ठाकुर जी का कोई कृपा हो गया, मैं कोई डांस नहीं करता हूँ, तो प्राकृतिक आप बहुत अच्छा किया था। लीला था ठाकुर जी। नंदा बाबा का कुछ वृंदावन जाऊंगी सखी, मैं वृंदावन जाऊंगी। नंदा बाबा कहने का तात्पर्य है ठाकुर जी का भजन करिए माता जी, सब आनंद ही आनंद है, भजन में ही आनंद है, और किसमें भी नहीं है। ये सब भोग वस्तु है, जो सब पाते खाते, ये सब भगवान का भजन, गुरु का चरण आश्रय, उससे मंगल होता है जी। कि वृंदावन सो बड़ नहीं, नंदगाम तिसो गाम, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम जसो नाम। ब्रज 84 कोस में 4 गाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसाना नंदगाम। नंदगाम, बरसाना, मथुरा और वृंदावन, ये 4 श्रोमणी ब्रज के धाम है, जिनमें ठाकुर जी का साक्षात निवास है। ब्रज के 7 देवालय हैं, 7 देवालय मतलब 7 मठ, जिनका जो दर्शन कर लेता है उसका 17 पीढ़ी बैतरणी नदी पार हो जाता है। वृंदावन चाहे तुम 1000 बार गए, अगर उनका ही दर्शन नहीं किया तो बेकार है तुम्हारा वृंदावन जाना। राधा दामोदर, राधा गिरिधारी, राधा रमण, रमण जी का दर्शन किया, गोपाल भट्ट जी ने प्राकट किया। श्री हरवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री बाके बिहारी, श्री हरिदास जी महाराज, और श्री मदन मोहन जी, और श्री 7 हो गए ना, 7 ये श्याम सुंदर और गोपेश्वर तो महादेव अच्छा, है। हाँ। वो तो महाराज के लिए, ठाकुर जी से कृपा करने के लिए, कृपा पाने के लिए, राधा जी का चरण दर्शन पाने के लिए बोले कि हमको एंट्री दो। पुरुष को कोई एंट्री नहीं थी, तो भगवान से बोली राधा रानी शंकर जी से, बाकी ऐसा है तो हमारा सेवक है, आया, पर लेकिन गोपी रूप में आया। तो गोपी चंदन जो आप लगाते हो माथे पे, ये गोपियों की चरण रज है, जिसको आप मस्तक पे लगा रहे हो। आप चाहे किसी को हरे कृष्णा मत बोलो, पर लेकिन सामने वाला आपको हरे कृष्णा बोलेगा। चाहे तुम लाख बना करो उसको, वो तो बोलता ही। उसकी ये पहचान है, ये राधा रानी का एक ठप्पा है। गुरु जी का ठप्पा नहीं है, ये राधा रानी का चरणों रज ठप्पा है, जैसे हमारे मस्तक पे लगा है। जब बोलते हैं ना कोई, राधा रानी का भक्त, कोई बोलते ना हरे कृष्णा, तो इतना खुश होता है एकदम। होगा अच्छा आदमी बोलेगा, मिनिस्टर तक बोलेगा। ये आप भगवान का चरण है, और जो भगवान की शरण में आ गया तो वो सबकी शरण में है। होने के बाद अनेक प्रकार के रत्न निकले थे, तो देवता और राक्षसों में दोनों में सहमति होने के बाद में शंकर जी ने बोला
कि जो रत्न निकलेगा सब आधा आधा करके बांट लेंगे। सबसे पहले विष निकला महाराज। देवता बोले कि विष निकला है, पियो। कौन पिएगा? तो शंकर जी के पास गए सभी देवतागण राक्षस लोग, कोई मरना नहीं चाहता है। तो भगवान शिव ने उस जहर को पी लिया, तो कंठ में रखा, तो उसका नाम हो गया नीलकंठ महादेव। समझे? और उसके बाद में हीरा जवाहरात पन्ना मोती अनेक प्रकार के रत्न मिले। सबसे लास्ट में निकला अमृत। अमृत जब कलश निकला तो राक्षस लोग बोले इसको हमको दो। देवता बोले नहीं, हम तुमको कैसे दे देंगे, इसका बंटवारा होगा। नहीं, बंटवारा नहीं, पहले हमको दो। राक्षस तो राक्षस प्रवृत्ति का होता है। तो देवतागण बोले ऐसा झगड़ा मत कीजिए, समाधान कर लीजिए इसका। चलो ब्रह्मा जी के पास चलते। ब्रह्मा जी बोले मेरे सामर्थ्य नहीं है कि मैं इसका बंटवारा कर सकूं। तो ब्रह्मा जी से पूछा मन कि कहाँ जाए? चलो नारद जी के पास। नारद जी तो भगवान के मन है। नारद जी बोले ऐसा है, ये किसी की बात नहीं है, किसी की सामर्थ्य नहीं है। राक्षस ज्यादा चतुर है, रात होता है तो राक्षस का बुद्धि और तेज हो जाता है। तो ऐसा करो, भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु बोले कि मैं अमृत पान कराऊंगा आपको, और आपको सभी को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, सबको दूंगा बराबर बराबर। तो आप मेरा इंतजार कीजिए। तो देवतागण और राक्षस बोले ठीक है, विष्णु भगवान से डरते थे। तो बोले ठीक है, कलश को यहीं छोड़ दीजिए। भगवान ने जब मोहिनी रूप धारण किया, राधा रानी का रूप, जमुना जी का रूप धारण किया, तो नृत्य करते करते आए, तो राक्षस उन पर मोहित हो गए। तो भगवान ने देखा कि दो राक्षस देवताओं की टोली में जाके बैठ गए। दो पंडित हो गया ना, तो एक में राक्षस और एक तरफ में देवता। देवता में जाके राक्षस बैठ गया। भगवान सोचा इसको अमृत पिला दिया तो अमर हो जाएगा। तो भगवान ने बोला एकदम डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता मैं इसको, तो कुछ अपने विचार से करूंगा काम। जब उस पंगत से पहले देवताओं को बांटना शुरू किया, तो वो उसको बोला कि तुम थोड़ा उधर बैठ जाइए शुरुआत में, लास्ट में। तो राक्षस देवताओं का रूप धारण करके लास्ट में बैठा दिया। लास्ट में जैसे ही भगवान अमृत बांटते बांटते चले गए, लास्ट में देखा कि राक्षस आ गया है, तो उसमें से 4 बूंद छलक गया। इधर में राक्षस बोलते थे अब सब तो हो गया, अब हमको दीजिए ना, सब हो गया, अब हमको दो। भगवान बोले रुको 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 रुको। तो एक अमृत की बूंद उस राक्षस के गले में चली गई। भगवान ने देखा तो राक्षस है, ये अभी से कष्ट दे रहे हैं देवताओं को, तो आगे चल के ज्यादा देंगे। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसको काट दिया गले को, उसको अंदर नहीं जाने दिया। गया तो उसका बन गया राहु और केतु, 2 ग्रह है ना आसमान में, हर समय उल्टे सीधे चलते रहते हो। आप देवता को अमृत तो पिला दिया, और उनमें से 4 बूंद जब गिरी, एक नासिक में गिरी, एक हरिद्वार में जाके गिरी, और एक उज्जैन में, और एक प्रयागराज। पहले ही नाम था प्रयागराज। इलाहाबाद तो मुसलमानों के राज्य में इलाहाबाद रख दिया, राक्षस थे ना मुसलमान, औरंगजेब ने उसका नाम इलाहाबाद रख दिया, इसलिए उसको इलाहाबाद बोलते थे पहले। अब प्रयागराज इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रयागराज सब तीर्थों का राजा है। तीर्थ मतलब जितना भी तीर्थ है भूमंडल में, कोट ब्रह्मांड में, ब्रज को छोड़कर, ब्रज नहीं जाता है किसी के पास, ब्रज के पास तो सभी आते हैं। तो प्रयागराज भगवान के पास गया, प्रभु मेरे को सबसे बड़ा ऑफिसर बना दिया है, सबसे बड़ा प्रधानमंत्री मेरे को बना दिया। अरे हाँ, तुम इसका कष्टों का निवारण कर सकता है, क्योंकि तुम्हारा जो हृदय है विशाल है। विशाल क्यों है? क्योंकि वहां श्री राधा रानी पटरानी यमुना जी आ रही है। तीनों नदियों का संगम होता है ना, उसको संगम बोलते हैं, इसीलिए उसको प्रयागराज बोलते हैं। सब तीर्थों का राजा है, उसको बोलते हैं प्रयागराज।
प्रयागराज ने सबका कल्याण करने के लिए वहां जन्म लिया। भागीरथ ने गंगा को प्रकट किया, लेके आया भागीरथ, तो गंगा शंकर जी ने धारण किया चंद्रमा में, फिर भगवान ने अपने चरणों से निकाला। तो ठाकुर जी सब पे ही कृपा करते हैं। भक्तों दृष्ट का कल्याण ब्रज में होता है, केवल साक्षात दर्शन करना है ठाकुर जी का तो ब्रज में साक्षात दर्शन है। गिरिराज जी साक्षात है, यमुना जी साक्षात है, ब्रह्माचल पर्वत है बरसाना वो साक्षात है, नंदेश्वर पर्वत है वो नंदगांव में है वो साक्षात है। इसलिए प्रयागराज स्वयं साक्षात है। जो वहां जीव जाएगा तो उसका 17 पीढ़ी बैतरणी नदी पार हो जाएगा। 17 पीढ़ी का कष्ट प्रयागराज हरण कर लेता है। तो प्रयागराज काला हो गया, घोड़ा हो गया, जैसा काला घोड़ा होता है ना ऐसा हो गया। अब प्रयागराज भगवान की शरण में आए, बोला प्रभु मैं संसार की मुक्ति करता, संसार के सब पाप मैं स्वीकार करता, अब मेरा भी तो कुछ उद्धार होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले सुनो, तुम गिरिराज जी का तलहटी में लोट लगाओ, ब्रजरज में लौट जाओ। जैसे वो लौटता रहा तो सुंदर होता रहा, फिर गोल्ड जैसा हो गया। जब भी तुमको ज्यादा कष्ट आवे, ज्यादा कालापन आवे, तो तुम ब्रज में आ जाया करो मेरे पास एक बार साल में। तो अक्षय तृतीया आती है बैसाख के महीने में, आता ना अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया को चंदन लेप होता है भगवान को, होता है। क्यों होता है? कि वो शीतल प्रदान करता है। और शीतल प्रयागराज में जितना शीतल होता है उस शीतल को सब भक्त लोग चुरा लेते हैं, सब ले आता है स्नान कर करके और पाप को छोड़ जाता है, सब पाप की गठरियों को छोड़ता है, सबको स्वीकार करता है। स्वीकार करने के बाद में फिर वो वृंदावन धाम आता है, वृंदावन में रज में लौटता है, रज में लौटने के बाद में वो स्वर्ण जैसा हो जाता है, गोल्ड जैसा हो जाता है। तो भगवान राधा रानी का चरण स्पर्श करने के बाद भगवान से आज्ञा मांगता है, महाराज अब मैं कहाँ जाऊँ? तो भगवान बोलते ब्रज में तेरे लिए स्थान नहीं है, तू जा प्रयागराज में जाकर फिर वहीं विराजमान हो जा प्रयागराज के नाम से, तो भक्तों का कल्याण करना। बोलो प्रयागराज भगवान की, महाकुंभ की जय। যে এখন প্রসাদ পাহাচ্ছে, আমার প্রভুর পাহে গেছে প্রসাদ, আর এরা এখন তিনজনে পাচ্ছে। বাবারা প্রসাদ পেয়ে তারপরে একটু কথা শুনিয়ে চলে গেছে তারা, আর আমরা এই যে সবাই এখন প্রসাদ পাহাচ্ছে। আজকে বাবারা বলছে খুব ভালো হয়েছে প্রসাদ, তো সবাই বলছে ভালো হয়েছে প্রসাদ। তো বন্ধুরা এই যে দুপুরে প্রসাদ পাওয়া গেছে, আর বাবারা প্রসাদ পেয়ে, ব্রজবাসী বাবারা প্রসাদ পেয়ে চলে গেল। আর তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি আবার যে বৃন্দাবন থেকে কারা আসলো আমাদের ঘরে, তো ব্রজবাসী বাবারা। তো প্রতি বছর আমাদের এই সময় মানে এই জানুয়ারি ফেব্রুয়ারির মধ্যে আসে, তো খুব ভালো লাগে। আর প্রসাদ বানাতেও ভালো লাগে, তারা যখনই আসে আমার খুব আনন্দ হয়। তো তাদেরকে ভালো ভালো প্রসাদ বানিয়ে মানে প্রসাদ গ্রহণ করানো বেশ ভালো লাগে। তো আরও অনেক কিছু বানানোর ইচ্ছে ছিল, কিন্তু টাইম নেই। তারা অন্য জায়গায় এক জায়গায় যাবে প্রোগ্রামেতে, সেই জন্য তারা বলে তাড়াতাড়ি প্রসাদ পেয়ে চলে যাবো। সেই জন্য খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে যতটা পেরেছি ততটা বানিয়ে তাদের সেবা দিয়েছি। আর তারা একটু তোমাদের সঙ্গে কথা বললো, তোমাদেরকেও শোনালো আর আমাদেরকেও শোনালো ভগবানের চর্চা। তারপরে এই যে কুম্ভ মেলা হচ্ছে যেখানে, সেখানের একটু চর্চা, সব কিছু শেয়ার করেছি তোমাদের সঙ্গে। আর সে বললো বেশ ভালো লাগলো। আর তো অনেকটাই বড় ভিডিও নিয়েছি, আর বেশি বড় করবো নি, ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে। বাবারা এসেছে, খুব ভালো লাগলো প্রসাদ পেয়ে। আর প্রসাদের এত তারিফ করছে কি বলবো, এত ভালো লেগেছে তাদেরকে, আমাদেরকেও ভালো লেগেছে, খুব ভালো হয়েছে। আজকে আরও টেস্টি লাগছে প্রসাদগুলো। সাক্ষাৎ বলতে গেলে বৃন্দাবন থেকে ব্রজবাসী বাবা এসেছে আমাদের ঘরে, তো ভগবানই বলতে গেলে ভগবানের দর্শন করা হলো। তো সেই রকম খুব ভালো লাগলো বন্ধুরা। আজকের মতন ভিডিওটা এখানে শেষ করছি, দেখা হবে আবার একটা নতুন ভিডিওতে। হরে কৃষ্ণ।